Good evening and welcome. Welcome to Divine Healing Valley Spirituality and Healing Meet. I'm Shashidhar, your host, and we are here back with the Wednesday session. And the topic for today is in continuation with what we did in the last session. So in the last session, we talked of invoking Shakti. Yes, so we'll do a quick recap of that. And the today's topic is we are talking of the Ananda Shakti. That means we are talking of the bliss body, Anandamaya Kosh, and the Shakti that we experience in that Kosh, which is the Anand Shakti, right? And the topic was Sacha Sukh. Sacha Sukh क्या है? उसके ऊपर हम बात करेंगे. And that is where we will be leading to the Anand Shakti, right? Okay, so those who attended the last session, anything that you want to ask or share from the session that we did last Wednesday, which was on invoking Shakti. Yes, so I'll do a quick recap and then you can add on to it. What we learned in the last session was we talked about the 5 koshas, the Panch Kosh Vivek, as it is mentioned in the scriptures. So we talked of the 5 koshas in which we live actually, right? So we have a physical body. We have a physical body, which is the Annamaya Kosh, the food body. Then we have the Pranamaya Kosh, the breath body or the vital body, energy body. Then we have the Manomaya Kosh or the mind body, Vijnanamaya Kosh, the intellect body, Buddhi, as we normally say it. And then Anandamaya Kosh, which is the bliss body or the Karana Sharir. Yes. So we are talking of the 5 koshas. So in the Anandamaya Kosh, we experience, and we talked about the 5 Shaktis in these koshas, right? So we talked about Ananda Shakti in the Anandamaya Kosh. We talked about the Gyan Shakti in the Vijnanamaya Kosh. And we talked about the Ichha Shakti in the Manomaya Kosh. We talked of Prana Shakti in the Pranamaya Kosh, and of course the Kriya Shakti in the Annamaya Kosh, right? So these are the 5 Shaktis in the 5 koshas which we experience in our day-to-day life. So this is what we had touched on last week, right? So if anybody wants to ask any question, if this is clear, then we will dive deep into the one of the Shaktis, which is starting from the Anandamaya Kosh, the Ananda Shakti. And that inquiry starts from Sacha Sukh Kya Hai? So that is the point where we are right now. So anybody who wants to share or anybody who wants to ask any question, feel free to do that. And welcome, Yojini ji, welcome. You're coming after a long break. Yeah, great, welcome. And who else? Tarun ji, welcome. Yes. कौन शेयर करना चाहेंगे लास्ट वीक से? क्या आपने टेक अवे क्या था, क्या सीखा? कोई सवाल हैं, कुछ शेयरिंग है? एंड देन वी टॉक ऑफ द टॉपिक टुडे. So everybody, I don't think everybody attended the session. So have you watched the recording? Everybody is aware of the 5 koshas. Let me ask direct question now. 5 कोशों के बारे में मालूम है आपको? वो हमारा घर है जहां हम रहते हैं. So the soul is residing, or the soul is lighting up these 5 koshas we talked of, right? Okay, good. So Yojini says yes. So the 5 koshas are important because we should know where do we exist, and each of the koshas have a separate kind of strength that we experience. तो शक्ति अलग अलग है इनकी. जो शक्ति मनोमय कोश में है या प्राणमय कोश में है, वो क्रिया शक्ति जो है शरीर में, वो अलग है. तो फिजिकल बॉडी, ग्रॉस बॉडी, एंड that means the gross body, the subtle body, and the you can say the causal body. Yes, इनकी शक्तियां अलग अलग हैं जो हम एक्सपीरियंस करते हैं. तो हमको डे टू डे लाइफ में देखना है क्या हम इन शक्तियों को बढ़ा सकते हैं. तो उसी के ऊपर हम आज बात करेंगे, राइट? ओके, सो लेट्स straight away get on to the topic. The topic is सच्चा सुख क्या है. So we all experience सुख and दुख in our life. हम पृथ्वी लोक पे हैं, मृत्यु लोक में हैं, तो यहाँ पे एक्सपीरियंसेस सारे हमारे डुअलिटी में होते हैं. तो वी एक्सपीरियंस लाइफ इन ऑलवेज opposites, right? So pleasure and pain, right and wrong, good and bad, darkness and light, so all these are in contrast. तो contrasting experiences होते हैं, तभी हम इसको experience कर पाते हैं. अगर duality नहीं होगी, opposite नहीं होगा, तो हम उसको experience नहीं करेंगे. Just like if there is no day, there is no night also.
तो अगर नाइट का एक्सपीरियंस होगा तभी डे का एक्सपीरियंस होगा. सो ऑल द एक्सपीरियंसेस आर बेस्ड इन ड्युअलिटी. आई होप एवरीबडी इज क्लियर ऑन दिस. All the life events, all the life experiences, all our life experiences are based in duality, opposites, right? तो इसीलिए अगर हम सुख की बात करें तो सुख का एक्सपीरियंस होगा दुख के साथ, कभी खुशी कभी गम. सुख और दुख इस तरीके से हम एक्सपीरियंस करते हैं, राइट? तो हम सच्चे सुख की अगर बात कर रहे हैं तो इसमें हम क्या बोल रहे हैं? Anybody who wants to share what is your experience of सच्चा सुख? We can have pleasure and pain in life and from any situation outside. बाहर की दुनिया में कोई भी सिचुएशन आ जाए, कोई भी इंसान आ जाए, कोई आपको खुशी देगा, कोई आपको गम देगा. सारे एक्सपीरियंसेस, सारे इवेंट्स हमको अगर सुख और दुख में ही बांटने हैं तो हमारा एक पैकेज होता है. हमारे प्रारब्ध जिनको हम बोल सकते हैं, उसके हिसाब से सिचुएशंस आती हैं लाइफ में और हम उसको सुख या दुख की कैटेगरी में डाल सकते हैं. And of course it is personal because it is my life. I will label it as सुख और दुख ना. अब जो मेरे लिए सुख है हो सकता है किसी के लिए दुख हो. कोई स्टूडेंट है, एक बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं, कोई 40% से ऊपर आ गया, 50 आ गया एंड इज वेरी हैप्पी, राइट? तो उसके सुख की डेफिनेशन क्या थी? अगर 40% मिल जाए बल्ले बल्ले, तो ही इज वेरी हैप्पी. एंड somebody is getting 90 and is thinking of suicide because he was expecting to come in the merit list. तो 90 लाके भी कोई दुखी हो सकता है और 50 लाके भी कोई खुश हो सकता है. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज वेरी वेरी पर्सनल एंड दिस इज वेरी वेरी रिलेटिव, है ना, बेस्ड ऑन आवर एक्सपेक्टेशंस. तो सुख और दुख, हम असली सुख और असली दुख क्या है? व्हाट डू यू थिंक? अपनी लाइफ में झांक के देखिए और फिर थोड़ा सा कोई शेयर करिए सो दैट आई नो वेयर यू आर एंड देन वी विल डाइव डीप इनटू द टॉपिक. तो सच्चा सुख क्या है, यहां से हम शुरू कर रहे हैं. तो पहले सुख और दुख की डेफिनेशन क्या है, पहले तो ये देख लेते हैं आपकी लाइफ में. राइट, रॉन्ग, गुड, बैड, प्लेजर, पेन, attraction, aversion, all these are dualities. All the life experiences are in duality, correct? तो सुख क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे? अगर मैं आपसे डायरेक्ट सवाल पूछूं, आपकी जिंदगी में सुख का अनुभव आप कब करते हैं? कोई कहते हैं मैं 8 घंटे सो जाऊं तो मैं सुखी हो जाता हूँ. हम्म. पेट भर के खाना खा लिया, छोले भटूरे और लस्सी. इफ यू आर इन पंजाब देन छोले भटूरे एंड लस्सी इज वेरी गुड रीजन टू बी हैप्पी. यस, सो आई नीड टू नो व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ सुख. एक स्टूडेंट से पूछेंगे, अगर वो बोलता है कि 90% आ गए, आई एम वेरी हैप्पी, गुड. The same condition for another student can be a reason for distress. वो स्ट्रेस में होगा. यस. सो अपनी लाइफ में आप देखिए, आपने किसको लेबल किया हुआ है सुख और किसको लेबल किया हुआ है दुख. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर. हम सब ने किया हुआ है और हम सबकी डेफिनेशन अलग अलग है. जो संदीप जी का डेफिनेशन होगा सुख और दुख का, वो शायद रेणु जी का नहीं होगा. जो सुशील जी का है वो शायद मेरा नहीं होगा, है ना. तो हम सबके अपने अपने डेफिनेशंस हैं सुख और दुख के, जनरली इन लाइन विद द सोसाइटी नॉर्म्स, करेक्ट? तो क्या है सुख और दुख, कोई बोलेंगे? एनीबडी हु वांट्स टू शेयर? तरुण, यू आर अनम्यूटेड योरसेल्फ इफ यू वांट टू शेयर. रेणु जी, बोथ ऑफ यू आर सर अनम्यूटेड. हाँ. सुबह 5 बजे उठ के साइकिल चलाने चले जाओ तो बहुत ही सुख है। हाँ, क्या बोल रहे हो? सुबह 5 बजे उठ के अगर साइकिलिंग पे चले जाएं और उस जो सुबह का टाइम अपने साथ मिलता है बहुत ही सुख है। ओके, तो मॉर्निंग टाइम इफ यू आर साइक्लिंग and going to the place which you like to go, where you like to go, so you are, that is the idea of sukh. Okay, good. Yes. Anybody else? जी मैं बोलूं? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए. मैं इस पर बहुत काम की सर। मैं बहुत धक्के भी मैं खाई और बहुत कंफ्यूज भी हुई, हम्म. बहुत रोई भी, बहुत रोई लाइफ में। और गुरु मिले, उन्होंने मुझे रास्ता बताया। हम्म. और मुझे आश्चर्य हुआ कि बिना एक भी प्रश्न पूछे गुरु जी ने मेरे मन के सारे सवालों का जवाब दे दिया। हम्म. तब मुझे लगा कि नहीं, कुछ है जो हम नहीं अनुभव कर पा रहे हैं अभी। हम्म. फिर धीरे धीरे मैंने इसमें काम करना शुरू किया। तो मुझे जॉब में जब बहुत पढ़ने का टाइम नहीं मिलता था,
जबकि मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन मेरा जॉब इस तरह का था कि मुझे लॉन्ग सिटिंग्स नहीं कर सकती थी। तो मैंने एक काम किया कि जैसे बहुत सालों तक मैं स्कूल में प्रिंसिपल थी, तो मुझे तो जॉब में टाइम नहीं मिलता था कि मैं उसके अलावा कुछ अच्छा काम करूं। मुझे लगा कि नहीं, मैं एक बार ट्राई करके देखती हूँ। तो मैंने जो जो वीक स्टूडेंट्स थे, जो बहुत बदमाश थे, बहुत मिस्चीवस स्टूडेंट्स थे, उनका केस अपने हाथ में लिया और मैंने भगवान का नाम लेकर कहा कि ये मेरा जॉब नहीं होगा, जो ये जॉब के अलावा मेरा भगवान आपका काम लिया मैंने हाथ में। मैंने उन पर काम किया और उसमें मुझे 100% सफलता मिली। और तब जो मुझे फील हुआ, मेरे लिए वो दुनिया का सबसे बड़ा सुख था। ओके, तो और अगर अब आप मैं डिफाइन करेंगे, अगर आप डिफाइन करेंगे तो कैसे बोलेंगे? सुख की डेफिनेशन आपके लिए क्या है? देने में है, हाँ, देने गिविंग, में है, गिविंग है ना? गिविंग, करेक्ट, वेरी गिविंग, गुड, यस। बहुत बढ़िया। So let's acknowledge Renu ji and Tarun ji. Both have expressed their point of view. And Renu ji says it is the joy of giving, which is the real sukh. Okay, understood. तो सेवा भाव आ गया, उसमें दान भी आ जाएगा किसी तरीके का, है ना? दे रहे हैं तो एक तरीके से आपने जो दिया, तो गिविंग, वेरी गुड. एंड Tarun ji says wherever he feels connected to himself, that is sukh. Yes, Sandeep ji, go ahead. तो जैसा आपने बताया, ये जो है ना अनस्पेसिफिक वर्ड है, हर एक की डेफिनेशन जो है इसकी अलग अलग है। मगर ज्यादातर हम आम जीवन में इसको जो है, जैसे एक बड़ा घर, बड़ी कार, बड़ी गाड़ी, प्रमोशन, या अच्छे रिलेशन, अच्छी हेल्थ, इन चीजों में हम जो है उसको, सुख को पाने की कोशिश करते हैं। और जैसे डोमेस्टिक ट्रैवल, इंटरनेशनल ट्रैवल, या हमारा एक जो है पैसिव इनकम अच्छी हो, सेफ हो, इस तरह से कई सारे हमने गोल्स बनाए होते हैं। तो वो जैसे मिलते जाते हैं तो हम जो है सोचते हैं हाँ ये हमें खुशी प्राप्त हुई, सुख प्राप्त हुआ। Okay. तो जनरली हम लोग इसमें डिफाइन कर लेते हैं। हालांकि ये हर एक के लिए अलग अलग है। किसी को एक बच्चे को एक टॉफी लेके ही खुशी हो जाएगी, और किसी को कोई 100 करोड़ लेके भी कोई खुश नहीं होगा, वो एक अलग। तो लेट अस लुक इनटू आवर लाइफ एंड सी। तो संदीप जी, अगर मैं आपसे डायरेक्टली पूछूं, आपकी जिंदगी में आपको, आपके लिए सुख की डेफिनेशन क्या है, तो क्या बोलेंगे? वो जो जो चीजें मिसिंग होती है ना लाइफ में, जैसे मान लो रिलेशनशिप इश्यूज चल रहे हैं, तो मुझे लगेगा ये बहुत जरूरी है। अच्छा। अगर मान लो मेरी हेल्थ खराब चल रही है, तो मुझे लगेगा यार मेरी हेल्थ ठीक हो जाए, बाकी जो हो। अब किसी का पैसा नहीं है, तो उसे लगेगा मेरे पास पैसा मिल आपके लिए जाए क्या तो है? मेरी सबसे ज्यादा खुशी उसमें मिलेगी। तो उस समय की प्रायोरिटी के हिसाब से भी ये चेंज होता रहता है। Okay, good, perfect, wonderful. So what Sandeep ji has said is basically उस समय की जो जरूरत है, जो नीड है या वांट है या डिजायर है, वो फुलफिल हो गई तो उस लेवल पे एक सुख मिल जाता है, विच इज अकम्पलिशमेंट और सक्सेस ऑफ अचीविंग अ गोल. तो गोल ओरिएंटेड सक्सेस कैन गिव happiness. Yes, it can give happiness, right? Then following your passion, like Tarun ji said, driving in the morning, cycling in the morning, in a place where he feels absolutely connected with nature or with himself. So that is happiness. Very good. And of course, following your passion in the case of Renu ji, तो सेवा भाव में जब वो आ गई तो उनको सच्चा सुख, she realized that is the real happiness. Okay, good, very good. Anybody else who wants to share anything? हाँ, सुशील जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जो सबको सुन के जो चीज दिमाग में आई वो ये है कि वेन वेन लाइफ में आपकी एक्सपेक्टेशन मीट हो जाती है, तो आप खुशी का अनुभव करते हैं। Okay. जो एक्सपेक्टेशन को डेंट आता है तो आप दुख का अनुभव करते हैं। तो happiness and you can say sadness will be depending on fulfillment of the expectation. Okay, very good, right? So that is another definition. That is how we live life, right? Let's look practically into our life. हम कैसे लाइफ जीते हैं, right? तो स्टूडेंट को मार्क्स मिल गए या उसको एडमिशन मिल गया इंजीनियरिंग कॉलेज में, वेरी हैप्पी, करेक्ट. जॉब मिल गई इंजीनियरिंग के बाद, अनदर वर्ड ऑफ हैप्पीनेस. तो 10th के रिजल्ट्स, 12th के रिजल्ट्स, जॉब इंटरव्यू क्लियर कर लिया, हाँ, देन शादी हो गई,
या आपकी जो है, जो भी आगे बात चल रही है, एंगेजमेंट हो गई, शादी हो गई, एंड देन फैमिली, यू स्टार्ट अ फैमिली, देन यू गेट अ प्रमोशन इन योर जॉब. सो दीज आर द वेज हाउ वी लुक एट लाइफ, and we take up these incidences which are happening in the outside world, or rather in our life, and we pick up the good moments and we say this gives me happiness, right? अगर वो नहीं हुआ, गोल अचीव नहीं हुआ, एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुए, तो हम उसको बोलते हैं कि ये दुख था, दुख का कारण बन गया. यस, किसी के साथ दोस्ती हो गई, एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी में गए, एंजॉय किया, सुख है. और अगर किसी ने नहीं बुलाया, किसी ने पार्टी कर ली और मुझे नहीं बुलाया, हाँ, तो दैट इज अ गुड एनफ रीजन टू फील सैड ऑल्सो, करेक्ट? तो आपको ये देखना है कि जब भी कोई लाइफ इवेंट होगा आपका, अगर वो जब हो रहा है उस समय अगर वो खुशी दे रहा है, तो जैसे ही वो खत्म हो जाएगा आपको दुख का एक्सपीरियंस होगा, है कि नहीं? अगर आपको जॉब मिल गई, हाँ, इंटरव्यू लेटर मिला, जॉब मिल गई, वेरी गुड, वेरी हैप्पी, पार्टी किया, एंजॉय किया, और आगे चल के अगर जॉब चली गई, तो क्या होगा? तो फिर दुख हो जाएगा. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन द आउटसाइड वर्ल्ड विच वी थिंक इज गोइंग टू गिव अस हैप्पीनेस. फिर वो चाहे हेल्थ के एरिया में हो, चाहे वेल्थ के एरिया में हो, प्रॉफिट हो गया बहुत बड़ा, हाँ, इनकम अच्छी हो गई, या फिर बहुत बड़ा लॉस हो गया बिजनेस में, कुछ भी हो सकता है ना? सो ऑल दिस विल बी रीजन ऑफ joy or sadness, joy or sorrow, happiness or sadness, but all this is dependent on the outside world. And how is the outside world? Is it always permanent kind of a thing, or is it Changing. transitory? बाहर की दुनिया तो निरंतर बदल रही है, तो कोई भी सिचुएशन, अगर आउटसाइड सिचुएशन आपको खुशी दे रही है, तो वो परमानेंट या इटर्नल नहीं हो सकती, या लाइफ लॉन्ग नहीं हो सकती. यस और नो? So we are Yes. living moment to moment, hoping that we will get more moments of joy, and that gives an experience of sukh. But actually वो सच्चा सुख नहीं है. क्यों? क्योंकि वो टेम्पररी है. Number one, it is temporary. Number two, it is absolutely dependent on something in the outside world. या किसी इंसान पे, किसी व्यक्ति पे आप आश्रित हो, या किसी वस्तु पे आश्रित हो, या किसी सिचुएशन पे आश्रित हो. जब तक वो सिचुएशन वैसे ही रहेगी मैं खुश रहूंगा, और जैसे ही वो सिचुएशन बदल जाएगी या वो चीज नहीं रहेगी तो मैं दुखी हो जाऊंगा. तो ये हमारा टेम्पररी सुख और दुख का एक्सपीरियंस है. सच्चा सुख वो है जो परमानेंट हो, इटर्नल हो, तभी वो सच्चा सुख कहेंगे. एवरीबडी ओके विथ मी? एवरीबडी एग्री? सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेजर एंड पेन. तो जो हम सुख चाह रहे हैं या ढूंढ रहे हैं बाहर की दुनिया में, वो कैसा होगा? इट विल बी लिमिटेड टू प्लेजर एंड पेन, टेम्पररी, ट्रांजिएंट, चेंजिंग, है ना? तो इफ ए रिलेशनशिप इज गोइंग फाइन, आई एम ओके, हैप्पी. और जहां ब्रेक डाउन हुआ, जहां लड़ाई झगड़ा हुआ, रिश्ते में खटास आ गई, अब नाउ आई एम नॉट हैप्पी. बीमारी आ गई और हेल्थ खराब हो गई, नाउ आई एम नॉट हैप्पी. अब बीमारी चली गई, वापस दोबारा हेल्थ रिकवरी हो गई, नाउ आई एम हैप्पी. गेट माय पॉइंट? तो ये टेम्पररी है, ये सच्चा सुख नहीं है, ये कंडीशनल है. It is depending on the outside world, which means it is depending on the situation, it is depending on people, it is depending on things. नई गाड़ी ले ली, बड़ी खुशी हुई, 1 महीने बाद उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और आपको चोट भी लग गई, नाउ यू आर नॉट हैप्पी. गेट माय पॉइंट? तो जो चीज खुशी देगी, उसकी सिचुएशन चेंज होते ही या उसकी कंडीशन चेंज होते ही वो दुख में बदल जाएगा. और जो चीज आते वक्त दुख दे रही है तो जाते वक्त सुख देगी. जो चीज आते वक्त सुख दे रही है, जाते वक्त दुख देगी. तो ये सच्चा सुख तो हो नहीं सकता. क्योंकि सत्य वो है जो इटर्नल है, परमानेंट है, अनचेंजिंग है. तो क्या हो सकता है सच्चा सुख फिर? सोचिए. अभी तक जो कुछ हमने डिस्कस किया, अभी तक जो कुछ हमने डिस्कस किया, वो सब मोमेंट्री है. अपने पैशन को, सुबह उठ के साइकिल चला लेना, कितना घंटा? आधा घंटा. तो आधा घंटा मैं खुश हूँ, उसके बाद साइकिल नहीं चला रहा तो मैं खुश नहीं हूँ, हाँ, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी. गेट माय पॉइंट?
अगर आप एक काम कर रहे हैं और उसमें बहुत खुश हैं, तो जैसे सचिन तेंदुलकर जब तक क्रिकेट खेल रहा था बहुत खुश है, अब क्रिकेट नहीं खेल रहा तो वो दुखी हो जाए। गेट मी पॉइंट? तो अपने पैशन को भी अगर फॉलो कर रहे हो, तो जब तक वो पैशन कर रहे हो और समथिंग इन द आउटसाइड वर्ल्ड, इट इज टेम्पररी। जैसे ही वो छोड़ देंगे, वो पैशन नहीं कर रहे हैं, तो आप सुखी नहीं हैं, तो ये तो फिर सच्चा सुख नहीं है। तो थोड़ा सा सोचते हैं सच्चा सुख क्या है। कौन बोलना चाहेंगे? सुशील जी, आप कुछ कह रहे थे। हाँ जी, सच्चा हाँ। सुख कहें या सुख कहें भी या नहीं वो मुझे पता नहीं, लेकिन अगर आपको सुख और दुख से ऊपर उठना है तो समता भाव अपनाना पड़ेगा। अगर दुख में सुख में अगर समता भाव रख सकोगे तो जो स्थिति होगी वो आपकी परमानेंट हो सकती है। बहुत बढ़िया। उसको सुख कहो या नहीं कहो, कुछ और शब्द दे दो, मुझे पता नहीं। हाँ, तो आप उसको ये भी बोल सकते हैं, जो सुख परमानेंट है, इटर्नल है, अनचेंजिंग है, वो आनंद कर दो, सच्चा हाँ सुख क्या। है। वो सच्चा सुख है ना। वो- और उसको हम किसके कैसे जानते हैं? जिसका कोई ओपोजिट ना हो। जिसका कोई ओपोजिट ना हो। हाँ, तो सुख का ओपोजिट है दुख। तो कंडीशनल जो है वो परमानेंट नहीं है ना, ये टेम्पररी है। प्लेजर के साथ पेन, खुशी के साथ गम। तो ये जो हैं टर्मिनोलॉजीज, ये ओपोजिट्स के साथ हैं, ड्युअलिटी के एक्सपीरियंसेस हैं। एक्सपीरियंसेस के लिए ठीक है, लेकिन परमानेंट हैप्पीनेस या जॉय या जो भी आप बोलना चाहें वर्ड, उसको वर्ड वोकैबुलरी पे मत जाइए, बट ये समझिए कि जो अनकंडीशनल है, जो परमानेंट है, जो इटर्नल है, वो है सच्चा सुख। उसको आमतौर पे हम बोलते हैं आनंद, ब्लिस। आनंद का कोई ऑपोजिट है? आनंद का ऑपोजिट किसी की वोकैबुलरी में है? हिंदी में हो, इंग्लिश में हो? ब्लिस और आनंद, इसका ऑपोजिट नहीं है। इसका कोई विलोम नहीं है, यानी कि ये इस ड्युअलिस्टिक वर्ल्ड का एक्सपीरियंस है ही नहीं। You have to go beyond the duality to non-duality to experience bliss. That is the catch. तो जब हम सच्चे सुख की बात कर रहे हैं, हम आनंद की बात कर रहे हैं, हम ब्लिस की बात कर रहे हैं, जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशनल नहीं है, अनकंडीशनल है, टेम्पररी नहीं है, इटर्नल है, और ये चेंज नहीं होता, ये अनचेंजिंग है। और इस पूरे ब्रह्मांड में अगर कुछ अनचेंजिंग है या परमानेंट है, जो सत्य है, वो क्या है? वो क्या है? या तो परमात्मा है या आत्मा है, बाकी सब तो बदल रहे हैं। तो आनंद और ब्लिस, यानी कि सच्चा सुख, जिसको हम आनंद या ब्लिस बोल सकते हैं, ये बाहर की दुनिया में नहीं मिलेगा। ये वेकेशन पे जाने से, हिल स्टेशन में जाने से नहीं मिलेगा। वहां जो मिल रहा है वो प्लेजर है, वहां जो मिल रहा है वो कंडीशनल है, वो टेम्पररी है, वो ब्लिस नहीं है। आप उसको बोल सकते हो ब्लिस, बट देन आप बोलोगे इट इज टेम्पररी ब्लिस। वो टेम्पररी ब्लिस है तो वो ब्लिस नहीं है, क्योंकि ब्लिस कंडीशनल नहीं होता, वो अनकंडीशनल है, इटर्नल है, परमानेंट है। दैट इज ब्लिस। यस। So now look at it. How can you experience bliss? How can you experience आनंद? सोचिए थोड़ा सा और फिर बताइए। और ऐसा नहीं है कि हमने एक्सपीरियंस नहीं किया, किया है, बट वो डुअलिटी के एक्सपीरियंस में नहीं होगा। दैट्स ऑल आई एम सेइंग। आप बोलो मैंने ब्लिस एक्सपीरियंस किया, बिल्कुल किया है, पर वो अवेयरनेस ही मैं लाना चाह रहा हूँ कि जब आपने वो ब्लिस एक्सपीरियंस किया, वो आप डुअलिटी का एक्सपीरियंस नहीं था, वो अद्वैत, नॉन डुअल एक्सपीरियंस था। तो नॉन डुअल का एक्सपीरियंस कब होता है, इस पे हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, but let's have some people share. Yes, and let me welcome people who have come here for the first time. So Ashok Juneja ji, अगर आप पहली बार आ रहे हैं, वेलकम। Then Anil Kumar ji, Tanu Singh ji, I think you have attended a session before, which is okay. Sanjay Punekar ji, Lakshit Bhatia ji तो पहले आए हुए हैं, Kamlesh Agarwal ji, okay. So I welcome all of you, and if you want to share something, please do that. Now you can introduce yourself and just mention who is your host. एंड इस टॉपिक पे अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर कर सकते हैं। तो अशोक जी, आपने वीडियो ऑन किया है, अगर कुछ कहना चाहते हैं अनम्यूट करके आप कह सकते हैं। यस, हु वुड लाइक टू शेयर? सबको नमस्कार। नमस्कार जी। मैं अमित अग्रवाल जी की तरफ से होस्ट हूँ। हम्म। उनसे मुलाकात हुई थी तो उन्होंने बताया था इसका। वेलकम सर, बताइए। मुझे अभी आज तो फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। आई एम एंजॉयिंग इट।
Okay, तो very good. कुछ बोलो तो let me more Perfect. understand it. हाँ जी, sure. Thank you. Welcome to the session. जब भी आपको शेयर करना चाहें, feel free to हाँ do जी, that. ठीक है, Yes. sure. So let's go to somebody else who wants to share. कौन शेयर करना चाहेंगे? Yes, Vijay ji, go ahead. शशिधर जी, अपने एक्सपीरियंस से बोलूंगा. It was in 2011 जब मैं पहली बार एक सत्संग अटेंड किया था. I was living in Dubai at that time. Okay. So it was a physical satsang that I attended, जहाँ पे they were talking about bringing up the child, कैसे bring up करना चाहिए. So in that context, the discussion or the presentation went through explaining कि जो प्रोग्रामिंग बच्चे की शुरू में होती है, उस प्रोग्रामिंग से बच्चा सारी लाइफ जीता रहता है. बिकॉज उसका जो सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग होती है, it is happening either before the birth, during the pregnancy, and afterwards during first few months and years of life, जिसमें बच्चे का कोई कंट्रोल नहीं होता. Yes. So therefore that forms his subconscious, which is several times stronger than the conscious. और कोई भी वो लाइफ में एक्टिविटी करता है, एक्शन करता है, तो वो उसके सबकॉन्शियस जो उसको ओवरटेक करके उससे करा देती. So broadly the message was that irrespective of a person, that person actually didn't have any control in what he became and what he is doing with his life. Yes. So and it's not just that other person, it is you as well. So उस स्टेज पे वो वननेस की फीलिंग आई और एक्सपेक्टेशंस खत्म हो गए. And at the same time ये भी अंडरस्टैंडिंग आई कि भाई the other person will not be able to change on his own or her own. Only when a guru comes in the way or knowledge comes in the way that his subconscious can change or can be modified. I mean, there has to be an effort involved, not just by that person, but others as well. Yes. तो जब वो अंडरस्टैंडिंग आई, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वननेस की फीलिंग हो गई सबकी तरफ. तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट है मेल्ट हो गया, फिनिश. From that day onwards, believe you me, I mean maybe another 2-3 months of satsang, वो वननेस की फीलिंग इतनी स्ट्रांग हो गई कि उसके बाद फिर किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कंप्लीट डिटैचमेंट एज फार एज एक्सपेक्टेशन इज कंसर्न्ड, एंड कंप्लीट ग्रेटिट्यूड. वेरी गुड. तो ये दो चीजें होने के बाद से फिर वो लाइफ ऐसे ही हो गई कि मतलब वो बहुत बढ़िया. हैप्पीनेस. वेरी गुड. सो अगेन दैट वैलिडेट्स द पॉइंट कि डुअलिटी में वो एक्सपीरियंस नहीं है जब तक आप नॉन डुअलिटी में नहीं आएंगे. एंड यू आर टॉकिंग ऑफ वननेस व्हिच इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्सपीरियंसिंग नॉन डुअलिटी, है ना. तो वहां पे ब्लिस एक्सपीरियंस होगा. एब्सोल्युटली राइट. एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, व्हाट यू हैव एक्चुअली एक्सपीरियंस्ड इज यू गॉट कनेक्टेड टू योरसेल्फ. फॉरगेट अबाउट अदर्स कुछ नहीं होते. अदर्स को छोड़ देते हैं अभी. आप अपने सेल्फ के साथ जब कनेक्ट होते हो, व्हेन यू आर कनेक्टेड टू योर ओन बीइंग, दैट इज व्हेन यू एक्सपीरियंस ब्लिस. बिकॉज हमारा नेचर क्या है? बेसिकली वी आर सोल, राइट? वी आर एन एम्बॉडीड सोल. वी आर सोल लिविंग इन दिस बॉडी. तो हमारा बेसिक नेचर क्या है? जो परमात्मा का नेचर है. और वो हमने सबको मालूम है, थ्योरेटिकली सबको मालूम है. सत चित आनंद. तो आनंद तो मेरा बेसिक नेचर है. सो व्हेन आई एम कनेक्टेड टू माई सेल्फ by any of the methods of sadhana or satsang or seva, so you got it in a satsang, Renu ji got it in seva, and many people can get it in sadhana also, right? When you are in actually in meditation, ध्यान में अगर आप जाएंगे तो जो ध्यान में तुरिया स्टेट या समाधि स्टेट बोलते हैं, उसमें आप absolutely connected with yourself, you will experience bliss, right? But the point is, it is never experienced in the outside world. You have to go inside and get in touch with your own basic self. Then you experience bliss, right? So bahar ki situation can be a motivator, can be a pointer, which helped you to look into your own, connect to your own self. So that is the point that we need to actually get, because once you are connected to yourself, you don't need any situation. आपको आप उस सत्संग में दोबारा जाने की जरूरत नहीं है, because you are connected to yourself, है ना? In case of Renu ji, she did something which was very, very passionate, seva. और उस सेवा में she got in touch with herself, her basic nature, and that is the experience of bliss.
right? And when Tarun was sharing, one particular day he went there and he experienced connecting to himself. He experienced bliss because he got in touch with himself. So हर एक का actual point क्या है? Getting in touch with your real basic nature. That is the beginning of experiencing bliss. Yes? And once you are connected, you know you are bliss. आप कहीं नहीं जा रहे हो, और जब जहां पे आप जा रहे हो आप ब्लिस लेके जा रहे हो. एक्चुअली में हम जहां पे भी हैं वहां ब्लिसफुल हैं, हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाते क्योंकि वी आर नॉट इन टच विद अवरसेल्फ. दैट इज द कैच. वेरी गुड विजय जी, वेरी गुड शेयरिंग, पावरफुल. यस रेणु जी, यू हैव रेज योर हैंड, गो अहेड. Just one very small thing. That is a big thing, but a few sentences only I will use. बचपन में माँ की गोद में मुझे अद्भुत फील होता था. आज मेरी माँ 93 इयर्स में नहीं है, चली गई हैं, लेकिन अभी भी मैं आंख बंद करके सोचती हूँ कि मैं माँ की गोद में लेटी हुई हूँ, तो मुझे वही अद्भुत फीलिंग होती है. वेरी गुड, एब्सोल्युटली परफेक्ट. तो एज ए बॉडी यू हैव योर फिजिकल पेरेंट्स, दैट मीन्स योर एक्चुअली बायोलॉजिकल पेरेंट्स, राइट, जिनके साथ आप पले बड़े हैं. तो वहां पे ब्लिसफुल एक्सपीरियंस क्यों हुआ? क्योंकि चाइल्ड इज ब्लिसफुल. It may be because of his ignorance or it could be because of his innocence, whatever. But a child is blissful, and blissful because he is absolutely safe. उसको कोई फर्क नहीं पड़ता वो कहाँ पे है. अगर मदर की गोदी में, माँ की गोद में है तो बच्चा blissful है. So that memory is there, very good. So you could be possibly 2 years, 3 years, 4 years, whatever, right? But that is a very blissful experience because you got in touch with your basic nature. Again, the point is the same. Yes, very good energy. Good experience. Right, anybody else who wants to recount your experience? All of us have experienced it. Only thing is we are not able to connect it. वो क्यों हुआ, क्या हुआ, नहीं पता चल रहा है. तो मैं सिर्फ वो कनेक्शन जोड़ रहा हूँ, वो अवेयरनेस में ला रहा हूँ कि ब्लिस का एक्सपीरियंस आपको हुआ तो क्यों हुआ. दैट इज द पॉइंट. और क्यों हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं आज की डेट में. अगर वो कनेक्शन है और उस अवेयरनेस को हमने अगर पाल पोस के बड़ा कर लिया, देन इट विल रिमेन विद मी, वेयरएवर आई गो आई विल बी ब्लिसफुल. बट दैट इज नॉट द केस. Outside world will take us away into the world, and then we forget that our basic nature of bliss, and we get into right, wrong, good, bad, pleasure, pain, attraction, aversion. All these things are blowing us away into the world. Yes or no? Yes. But if you can hold on to that basic nature of bliss, then you will remain blissful, you will remain happy. And as सुशील जी ऑल्सो सेड, समता का भाव आएगा, वो तब आएगा जब आप ब्लिसफुल नेचर में हो, तब समता में आओगे. Very good. Let's acknowledge everybody who shared, and welcome Sanjeev. Anybody else who wants to share? We are talking of सच्चा सुख. आपका एक्सपीरियंस क्या है? And we are talking of the सच्चा सुख कौन सा है? जो परमानेंट है, अनकंडीशनल है, irrespective of the outside situation, you can be blissful. Whatever be the situation outside, I can be blissful, or we can be blissful. जब ये अवेयरनेस में आ जाता है, then nothing can shake you. फिर बाहर की दुनिया आपको नहीं हिला सकती, अब आप समता में आ जाओगे. So I have summarized everything that all of you have said. Main point is getting in touch with your basic nature of Anand or bliss. So let's have more people share. And Sanjeev, feel free to share whenever you are comfortable. Yeah. Yes. कौन बोलना चाहेंगे? और अनिल कुमार जी, तनु जी, संजय पुणेकर जी, कमलेश अग्रवाल जी. Oh, कमलेश जी, नमस्कार. Right. Anybody else who wants to share? Otherwise, we can dive a bit deeper into the topic. Okay. So first, let us understand why are we lost in the outside world and we have lost connection with ourselves. ठीक है, तो इसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं, तो हमको समझ में आ जाएगा why we are not in touch with ourselves. हम क्यों अपने आप से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं. करेक्ट. See, as Vijay ji rightly said, it is all during the conditioning. जब एक बच्चा पैदा होता है अपनी इन्फेंसी में और फिर चाइल्डहुड में एंड देन टीनेज में, क्या हो रहा है? सोसाइटी कंडीशनिंग हो रही है. इज कंडीशन बाय द पीपल इन हिज लाइफ. पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स लिविंग इन द फैमिली, गोइंग टू स्कूल, टीचर्स, प्रिंसिपल, कलीग्स, जो स्कूल के बच्चे हैं, बाकी सारे आस पड़ोस के बच्चे जहाँ से वो पला बड़ा है. तो द फर्स्ट 7 years
7 to 14 years, 14 to 21 years. These are the age of conditioning. Yes, we all know that. और इसमें हमारे अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हमारे माइंड को एक तरीके से कंडीशन कर देते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड का एक पैटर्न बन जाता है। कुछ सर्वाइवल पैटर्न्स होते हैं, कुछ सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं, ये सब हमको एक पर्सनालिटी में ढाल देते हैं और उसी पर्सनालिटी के साथ हम सारी जिंदगी जीने के क्या बोलते हैं, एक फॉर्मेट बन जाता है हमारा, एंड वी स्टार्ट लिविंग अवर लाइफ अकॉर्डिंग टू अवर कंडीशनिंग एंड बिकम्स ए पर्सनालिटी। तो कोई इंट्रोवर्ट होता है, कोई एक्सट्रोवर्ट होता है, कोई बहुत कॉन्फिडेंट होता है, कोई बहुत डिफिडेंट होता है, कोई बहुत करेजियस होता है, कोई बहुत दब्बू होता है, कोई विक्टिम ईगो में रहता है और कोई विलेन ईगो में रहता है। किसी को तंग करने वाला मजा आता है और कोई तंग होता रहता है। तो ये सब चीजें क्या हैं, ये हमारी एक पर्सनैलिटी बन गई है बिकॉज ऑफ द कंडीशनिंग, एंड दिस इज व्हाट वी नीड टू ब्रेक इफ वी हैव टू get in touch with our real self. Which is tough? Yes, it is tough. It will take time. Yes, it will take time. But with that awareness, if we move, things will become easy. अब जब हमारा ईगो बनता है, ईगो का बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है ईगो का? देयर इज समथिंग दैट आई लैक। जब भी एक फीलिंग आती है लैक की, आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट हैप्पी इनफ, आई एम नॉट having enough resources in my life, so there is some kind of a lack which creates this or which keeps this ego in place. Yes or no? ईगो का बेसिक डेफिनेशन यही है कि देयर इज सम लैक। अब अगर लैक है और एक सेपरेशन है, ईगो का मतलब क्या है? बेसिकली आई एम दिस बॉडी। देह भाव में हो तो आप अहंकार में हो, है ना? तो अहंकार में, देव भाव में मैं अगर शशिधर अलग हूं दुनिया से, तो संसार से अलग हूं और मेरे अंदर कुछ लैक है, then what will I do? By default, I will try to get something from the outside world which will make me complete. क्योंकि मैं आधा हूं, अधूरा हूं, लैकिंग हूं, तो मैं उसको फुलफिल करना चाहूंगा, अपने आप को फुलफिल बनाना चाहूंगा, है ना? तो एक जो एक इनबॉर्न नीड होती है ईगो की, वो क्या होती है? ईगो मतलब इंसान की बात कर रहा हूँ, जो इंसान अगर सेल्फ अवेयरनेस में नहीं है तो वो ईगो में ही है ना? तो a person who is living in the world is trying to get something from the outside world which will make him whole, complete and perfect, not realizing that he is already whole, complete and perfect. कंडीशनिंग की वजह से उसको वो लैक की फीलिंग आई है, एक्चुअल में कोई लैक नहीं है, राइट? आई एम होल, आई एम कंप्लीट, आई एम परफेक्ट, लेकिन ये अवेयरनेस में नहीं है। क्या बोल रहा है वो? आई लैक समथिंग, आई डोंट डिजर्व लव इन माई लाइफ, पीपल डोंट लव मी। मेरे एक्सपीरियंस में अगर मैं ईगो के अंदर हूं तो व्हाट डू आई एक्सपीरियंस? नॉट इनफनेस, नॉट गुड इनफ, नॉट पावरफुल इनफ, नॉट रिच इनफ। तो अब मेरे को संसार से कुछ चाहिए जो मेरे को फुल कंप्लीट करेगा। लग गए रैट रेस में, पैसा कमाओ, एक्वायरिंग वेल्थ, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, तो गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, ये सब चीजें आ गई। अच्छे तरीके से, बुरे तरीके से परवाह नहीं, मेरे को चाहिए, because that will make me complete, and it is never going to make it complete, right? वो fulfillment कभी आती नहीं है। क्यों? क्योंकि बेसिक आइडिया में ही लैक है। आई एम सेइंग आई लैक, तो जितना मर्जी मैं ऐड कर लूं वो मैं लैक में ही रहूंगा, क्योंकि बाहर की चीज दुनिया ऐसी कुछ नहीं ऑफर कर सकती जो मेरे को कंप्लीट करे। अब फिर कोई इंसानों को ढूंढ रहे हैं, हाँ, कि आई एम हाफ, मैं आधा अधूरा हूँ, यस, तो कोई और मिल जाए जो मेरे को पूरा कर देगी। सो व्हाट इज हैपनिंग? वन हाफ इज लुकिंग फॉर अनदर हाफ। तो ए मैन मीट्स ए वुमन एंड देन दे थिंक हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 1। लेकिन रिलेशनशिप में क्या होता है? दिस इक्वेशन डजंट वर्क। हाफ प्लस हाफ इज नॉट इक्वल टू 1 इन रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में क्या होता है? हाफ इंटू हाफ। ओके, so one half is looking for another half for completion, but they end up being 1/4. Half multiplied by half is 1/4. So earlier you were 50%, और जो एक रिलेशनशिप में घुसते हो, you think this relationship is going to make me 100%. The end result is you are left with 25%. So one breakdown, हाँ जी, one breakdown in relationship leaves you 25%. Then 25, अब जिस लेवल पे आप हो, आपको उसी लेवल के मिलेंगे ना लोग भी। So when 25% is looking to get fulfilled, he is finding another 25%. He cannot find somebody who is 100%. एक केंचुए की शादी केंचुए से ही होगी ना,
कैंची से ही होगी ना। हाँ, ईगल की शादी ईगल से हो सकती है, शेर की शादी शेरनी से हो सकती है, एक केंचुए की, चींटी की शादी ईगल से तो नहीं होगी ना। तो ईगल ईगल को ढूंढेगा, केंचुआ केंचुए को ढूंढेगा, राइट? एवरीबॉडी गेटिंग इट? तो 25% पे अगर आप हो और आप लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हो, आपको कौन से लाइफ पार्टनर मिलेगी? 25%। नाउ यू थिंक यस, दिस इज गोइंग टू बी फुलफिलिंग। मैनी पीपल डू दैट। फर्स्ट मैरिज, सेकंड मैरिज, अभी तो न्यूज में है थर्ड मैरिज भी हो रही है, हो गई, correct? So I don't want to give names, but yeah, you can understand. So now another 25% meet another 25%, and result is what? When they, अगर जब तक चल रहा है ठीक है, जब नहीं चल रहा है वो छूट गए, now they are left at 12.5%, right? Or 10%. So what is happening? You are losing your self-worth, desperately trying to gain your self-worth and self-acceptance and self-love. वो गायब है, बाहर की दुनिया में है ही नहीं, हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? तो आउटसाइड वर्ल्ड कैन नॉट मेक अस फुलफिल्ड। हाउ मेनी ऑफ यू कैन गेट दिस? बाहर की दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है, वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति, जो आपको 100% बनाएगा। क्यों? क्योंकि आप गलत फहमी में जी रहे हो कि आप 100% नहीं हो, आप ऑलरेडी 100% हो। वो अवेयरनेस कब आएगी? व्हेन यू आर इन टच विथ योर ओन बेसिक सेल्फ, विच इज ब्लिस। When you are blissful, you become 100%. And how do you become blissful? Only by connection with the divine. जब आत्मा परमात्मा के साथ कनेक्ट होएगी, डिवाइन लव, डिवाइन लाइट, डिवाइन विजडम की बारिश होएगी, उस abundant flow में आप 100% हो जाओगे. And then you can share your love, peace and joy with others. That is the way to become 100% and blissful and enjoy a absolutely stunning, beautiful life. You will create magical, miraculous results in life. Making sense? Anybody who is wanting some discussion should raise your hand or unmute yourself and have a discussion with me. And since we are not in touch with ourselves, we are losing ourselves. 50% से 25 पे आ जाएंगे, 25 से 10 में चले जाएंगे और फिर डेस्परेशन में, डिप्रेशन में जाएंगे, एंड देन फाइनली वी विल एंड अप विद, पहले हम ईज में होते हैं, फिर हम डिजीज में होते हैं, एंड देन फाइनली वी बिकम डिसीज्ड. Everybody getting the connection? तो जब भी लाइफ में डिजीज आए, बिफोर यू गेट डिसीज्ड, you have to bounce back and come back to ease. That can happen when you connect with the divine, fill yourself up with love, divine love. That is actually called self-love. So self-love has nothing to do with being selfish. Self-love is everything to do with the connection with the divine. You fill yourself up with divine love. And instead of going around with a begging bowl, please love me, please love me, please love me, you radiate love to everybody in your life. That is how you become 100%, and that is how you share your 100% with others without losing power and freedom in your life. तब 100% को 100% मिलेंगे, and life will be blissful because you are connected to yourself. That is the catch. तो आनंद शक्ति में बहुत पावर है, आनंद में बहुत पावर है. जब आप आनंद में हो, you are absolutely blissful. You are connected with the divine. You can heal the whole world. You can heal all the people in your life. You can have wonderful relationships. Your body gets healed. Your physical health becomes perfect. Fit, flexible, healthy body, strong body. Mentally alert, positive mindset, correct? And emotionally balanced. Emotionally balanced होंगे, equanimity होगी, अब समता में आओगे. Yes, समता doesn't come just like that. What does समता mean? समता means आप सुख और दुख को एक ही तरह से देख रहे हो, दृष्टा बन के, साक्षी बन गए हो. आप दृष्टा बन गए हो. तटस्थ बोलते हैं इसको. जैसे तट में खड़े होके आप पानी को बहते हुए देखते हो, वैसे लाइफ को बहते हुए देखो. फिर उसमें चाहे फूल आए, कांटे आए, डेड बॉडी आए, गार्लैंड आए, कुछ भी आए, दैट इज लाइफ इज फ्लोइंग. वो समता है. तो वो तब आएगी जब आप अपने बेसिक नेचर ब्लिस से कनेक्ट होंगे. मेकिंग सेंस?
Okay, let's have some people share. I've shared a lot. Yes, there are many people who are silent today. So let's have some people share what is happening. क्या चल रहा है? मेरे इतना कुछ कहने के बाद अगर कुछ असर हुआ, कुछ डिस्कशन करनी है, so you can raise your hands. Who would like to share? The only person who is unmuted is Renu ji, or Kapil ji. Sorry, sir. Sorry, sir. I was not. If you want I have already expressed my views. Okay, great. So who wants to share? Lakshit ji. Okay, Lakshit ji, go ahead. Video on कर लीजिए. Yes. Go ahead. Yes. So things are like आपने अहंकार बताया, then there is Trishna as well. Trishna is desire. I'm always hoping to have something in my life and want to achieve it. And we know that everything, अगर मेरा कोई फ्रेंड है या मेरी कोई गर्लफ्रेंड है, वो सब कुछ एक मृत्यु होने वाली है. जितने भी हमें प्राणी दिख रहे हैं वो सब कुछ नाशवान है. मेरे पास चीजें हैं, मेरे संबंध है, बंधन है, वो नाशवान है. When we know this and we are very willingly we absorb this thing कि ये सब नाशवान है, ठीक है. एंड जो नाशवान नहीं है, जो निराकार रूप है, ठीक है, जब हम उसकी खोज करेंगे और वो जब हमारे अंदर होगा, जब उसका एकीकरण हो जाएगा हमारा, तब हमें समझ में आएगा कि क्या ब्लिस होता है. अब वो ना आपके मन से होगा, ना आपकी बुद्धि से होगा, ना वो शरीर से मिलेगा आपको. वो आपको बस आपकी आत्मा ही दिला सकती है. अब आपकी आत्मा में कितना आपका आत्मा वृत्ति पहुंच चुकी है कि वो इन सब चीजों को बदल के रख सकती है. जैसे ही वो बदलने का स्वरूप ठान लेगी कि मुझे, मैं देख भी रहा हूँ, मैं नहीं देखूंगा, मेरा मन भाव में जा रहा है, वो अभाव में रखूंगा, मेरा शरीर जो मेरी प्राण शक्ति ऊर्जा है, मैं उसको अपनी ऊर्जा वेस्ट नहीं करूंगा. कोई अगर मुझे कहना चाहता है, बट मैं अपनी बुद्धि और मैं अपनी आत्मा को हमेशा निश्चल पूर्वक रख पाऊंगा. मेरे शरीर पे मेरा कंट्रोल है. ये सब चीजें धीरे धीरे आपको आपके आत्मा में एकीकरण रखेंगे और जो पर ब्रह्मा की सोच है वहां तक आपको ले जाने की शक्ति रखता है. ओके, तो आप कहाँ तक पहुंचे सर? आपकी लाइफ में क्या चल रहा है? ब्लिस का कौन सा एक्सपीरियंस हो रहा है? इफ यू वांट टू शेयर. नहीं, मेरा तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है ऐसा कुछ. तो सर यहाँ पे थ्योरेटिकल ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा. थ्योरी देने के लिए मैं बैठा हूँ. हाँ. मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंशियल शेयरिंग चाहता था कि आपके लाइफ में एक्सपीरियंस ब्लिस का क्या है. सुख के लेवल पे है, प्लेजर के लेवल पे है, खुशी गम में है, सुख दुख में है, या आनंद का एक्सपीरियंस है. सबको हो चुका है ये मेरा एक्सपीरियंस. मेरा समता भाव है. मेरा कोई ऐसा नहीं है सुख दुख या प्लेजर ना प्लेजर. तो आपकी लाइफ में समता है, आपकी लाइफ में इक्वानिमिटी है. राइट. यस, गुड, वंडरफुल, दैट्स व्हाट आई वांट टू शेयर. तो आपके अगर समता है, आपको रिश्तों में समता दिखती है, लोगों में समता दिखती है, वैर भाव नहीं है. एंड संजीव सेज दैट एज निर्वैर. अगर आपका किसी के साथ बैर नहीं है तो आप अजात शत्रु हैं. आपके अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है आउटसाइड वर्ल्ड के साथ, इनसाइड वर्ल्ड में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तब आप ब्लिसफुल हो. यस, वेरी गुड लक्षित जी. इफ दैट इज द सिचुएशन, वेरी गुड, आई एम इम्प्रेस्ड. Great. But we should not share theory. We should share from our life. That's my only point. Yes. Let's acknowledge Lakshit ji. Very good sharing. Right. Anybody else who wants to share? Yes. Sandeep ji, go ahead. जो थोड़ा मुझे समझ आया वो यही है कि सुख और दुख में हमें संभाव में रहना चाहिए. और जो है अगर सुख भी है तो हमें ये भी होना चाहिए भाई ये जरूरी, ये परमानेंट नहीं है, ये भी बदलेगा. और अगर किसी हम दुख की कंडीशन में है तो भी हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि ये भी हमेशा नहीं रहने वाला, वो भी समय बदलता रहता है, वो भी समय अच्छा आएगा. Yes. तो वो अगर रखेंगे तो हम ज्यादातर हम बैलेंस की लाइफ में हम जिएंगे. Yes. तो वो काफी कुछ मैं फॉलो भी करता हूँ लाइफ में. तो उससे बैलेंस. बहुत बढ़िया. लेट्स एक्नॉलेज संदीप जी. और इसके लिए एक बहुत अच्छा एक स्टेटमेंट है, दिस टू शैल पास. कितने लोगों ने सुना है?
this too shall pass. This is a very, very powerful word, very powerful sentence. अगर दुख हो रहा है, this too shall pass. खुशी हो रही है, this too shall pass. तो आप समता में आ जाओगे. हाँ, तो इसके लिए एक स्टोरी भी है कि there is a king and there is a minister. हाँ, तो स्टोरी उनकी है. तो मिनिस्टर का एक ये बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड था, वो हमेशा बोलता था दिस टू शैल पास. तो एक बार कि जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, दिस टू शैल पास, व्हाटएवर. So that is the kind of language he used to use. कि जो कुछ हुआ बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है. Good for the actually whatever is happening in our life is for evolution of the soul, है ना. तो जो कुछ हो रहा है, सुख आ रहा है या दुख आ रहा है, it is a process of evolution of the soul only, but it comes like a story. So yeah, enjoy the story. हाँ, तो राजा और मंत्री जो हैं वो एक बार राजा शिकार पे जाता है तो मंत्री को लेके जल जाता है. और वहाँ जो भी शिकार हुआ करते हैं, राजा को चोट लग जाती है. राजा को चोट लग जाती है उंगली में, एंड हिज फिंगर इज बैडली कट. तो वो बोलता है, बहुत परेशान होता है, दुखी हो रहा होता है, कहता है महाराज जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, दिस टू शैल पास. हाँ, कहता है जी पागल है, मेरे को चोट लग गई है, इसका दिमाग खराब हो गया है. हाँ, वापस आता है एंड देन ही इज फ्यूरियस विद मंत्री. उसको बोलता है इसको कारागार में डाल दो. राइट. तो ही इज एब्सोल्युटली फ्यूरियस. तो उसको कारागार में डाल दिया जाता है, उसको कोड़े मारे जा रहे हैं, उसको तंग करे जा रहे हैं. वो कहता है दिस टू शैल पास. उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जो करना है कर लो. तो नेक्स्ट टाइम ही अगेन मूव्स आउट ऑफ द टाउन. जंगल में फिर क्या होता है, वो रास्ता भटक जाते हैं शिकार करते करते और अकेले पड़ जाते हैं. तो वहाँ कबीले के जो बहुत लोग होते हैं वो उनको पकड़ के बलि देने के लिए ले आते हैं उनको. वो तो उल्टा टांग दिए, बलि देने वाले होते हैं उसकी. तभी देखते हैं एक बोलता है कि अरे ये तो इंजर्ड है, इसकी बलि नहीं दे सकते. करेक्ट. तो राजा वहां से छूट के आता है एंड देन ही रियलाइजेस कि वाकई में जो कुछ हुआ मंत्री ने सही कहा था. एंड ही गोज बैक. उसको वापस जाता है किंगडम में. फिर बोलता है सब लोगों को, भाई मंत्री को निकाल के लाओ वापस. तो बोलता है आई एम रियली सॉरी, तुमने जो कहा था बिल्कुल सही निकला. आज मेरे साथ कबीले वालों ने पकड़ लिया मुझे, मेरी बलि देने वाले थे, और पर इसकी वजह से मैं बच गया. सो आई रियली वांट टू थैंक यू फॉर वट एवर यू सेड. तो बट आई एम रियली सॉरी. कहता है वट एवर हैपन्स फॉर द गुड, दिस टू शैल पास. कहता है यार गजब हो, मैंने तुम्हें तंग किया, इतना मारा पीटा, कोड़े लगवाए, सब किया, उसके बाद तुम बोलते हो कि जो कुछ हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है. कहता महाराज आप हमेशा मेरे को शिकार पे ले आते थे. राइट. अगर मैं कारागार में नहीं होता तो मेरे को लेके जाते आप, और वहां पे मेरे को तो कोई चोट नहीं लगी, आप बच जाते, मेरी बलि चढ़ जाती. तो जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, दिस टू शैल पास. तो जो भी हो रहा है, देयर इज ए डिवाइन solution to it, there is a divine reason behind it, let it happen. वो हमारे सोल के इवोल्यूशन के लिए हो रहा है. अगर हम ये मान लेंगे तो चाहे सुख आए या दुख आए, हम समता में रह सकते हैं. तो ऐसे कुछ सेंटेंसेस हैं, उनको अपना लीजिए और समता में रहने की आपकी प्रोसेस जो है वो बढ़ जाएगा, है ना. सो इट विल नॉट बी थ्योरेटिकल, इट कैन बी रियली रियली वेरी वेरी प्रैक्टिकल. एंड अमित जी आज थोड़े से बिजी लग रहे हैं, वरना अमित जी इज फुल ऑफ दिस काइंड ऑफ वन लाइनर्स जो हमेशा लेके रखते हैं. And this is very, very powerful way of balancing equanimity, samta, oneness. All these things are practical, very, very practical. ये theoretical बिल्कुल नहीं है. बल्कि मामा जी आप ही की बात कर रहे थे, right? So you have to understand. अब अगर हम सुख और दुख की ही बात करते हैं, सच्चे सुख की बात कर रहे हैं ना, तो सुख और दुख की बात कर लेते हैं. We have some time. Yes, we have some time. So I will extend possibly by another 5 minutes. Okay? Yes. Just show me a hand. 5 minutes extension. Okay, good. तो सुख और दुख में क्या होता है, जब भी हमको दुख आता है तो हम दुख के कारण को नहीं ढूंढते. दुख के कारण को मतलब व्हाई दिस हैपेंड का थोड़ा सा अगर हम सेल्फ एनालिसिस करें, स्वाध्याय करें, तो हम समझ जाएंगे कि ये हमारा प्रारब्ध था, मेरे ही कर्म हैं जो एक लाइफ सिचुएशन बन के मेरे पास आए हैं. यस. और अगर मैं इसमें से लर्निंग ले लूं, देन इट विल बी गुड फॉर माई स्पिरिचुअल ग्रोथ. बट नॉर्मली क्या होता है, जब दुख आता है, वी आर ऑन ए रिबाउंड, वी स्ट्रेट अवे गो टू फाइंड द सुख. हम सुख की तरफ भाग जाते हैं. एक रिलेशनशिप टूट गई, बाउंस बैक, स्ट्रेट अवे रिबाउंड में दूसरे रिलेशनशिप में घुसने की कोशिश करते हैं. बट इफ यू जस्ट स्टॉप फॉर सम टाइम, एनालाइज व्हाट वेंट रॉन्ग एंड सी
हमारे अंदर क्या विकार हैं जिसको हमको सुधारना है, या समथिंग लाइक हाउ टू इम्प्रूव माई सेल्फ, स्वाध्याय थोड़ा सा करेंगे तो हमारे दुख के निवारण का सोल्यूशन दिखेगा। सीधा सुख की तरफ नहीं भागना, ठीक है। तो जब दुख आए, दुख के निवारण का कारण अगर हम ढूंढें और सुख की इच्छा ना रखें, तो हम समता में आते हैं। और ये स्क्रिप्चर्स की लैंग्वेज है जिसको हम बोलते हैं कि समता में आने का एक ही तरीका है, दुख के कारण को ढूंढने के लिए तत्पर रहिए और उसका निवारण करने की खोज करिए, इन यू, नॉट आउटसाइड। एक रिश्ता टूट गया, दूसरे रिश्ते में कूदने से पहले पहले ये देखो, अपना स्वाध्याय करके देखो क्या वजह थी जिसकी वजह से ये दुख आया, उसका कैसे निवारण हो सकता है, राइट। एंड देन व्हेन यू मूव फॉरवर्ड, तो एकदम से सुख की इच्छा मत करो और दुख के कारण की खोज करो, तो आप आनंद की स्थिति में पहुंचोगे। व्हेन यू आर फ्री फ्रॉम द दुख की अनिच्छा और सुख की इच्छा, दोनों से फ्री हो जाओगे तो आप समता में हो। यानी कि सुख की इच्छा भी नहीं करनी और दुख की अनिच्छा भी नहीं करनी कि ये ना हो मेरे साथ। यस। तो अगर कुछ अनचाहा हो रहा है, होने दीजिए, एक्सेप्टेड। मन चाहा हो रहा है, ओके, दिस टू शैल पास मान के उसको एंजॉय कर लीजिए, लेकिन ज्यादा अटैच नहीं होना किसी के साथ, क्योंकि सब कुछ बदलेगा, सब कुछ चेंज होगा। उन दोनों स्थिति में सम अगर हो, इक्वानिमिटी में हो, देन इट इज समता, and that is when you will experience your real nature of bliss, which is permanent, unconditional, eternal, which is you. तो bliss is your nature. तो आनंद की स्थिति में जब आनंदमय कोश एक्टिव होता है, तब हम आनंद में जी सकते हैं। तो आनंदमय कोश और आनंद का कनेक्शन सबको समझ में आया? आज यही था हमारा टॉपिक, राइट। और उसके लिए एक छोटा सा एक फॉर्मूला भी है जो एक रोज के आप प्रोवर्ब की तरह यूज कर सकते हैं, फीलिंग हैप्पी गिविंग थैंक्स। तो आई एम फीलिंग हैप्पी, आई गिव थैंक्स। दैट इज अ वेरी वेरी पावरफुल वे ऑफ एस्टैब्लिशिंग योरसेल्फ इन द ब्लिस बॉडी, ब्लिसफुल नेचर। आनंदमय कोश आपका एक्टिव होगा। तो आज हमने 5 कोशों का इंट्रोडक्शन किया, 5 शक्तियों के बारे में पिछले सेशन में बात करी। आज हमने एक आनंद कोश, आनंदमय कोश और आनंद शक्ति की बात करी। अगली बार हम उसे विज्ञानमय कोश और ज्ञान शक्ति की बात करेंगे। यस, कैसे उसको बढ़ाना है, कैसे उसको हम एक्टिवेट कर सकते हैं, और ज्ञान की महिमा या ज्ञान की शक्ति क्या है, वो हम अगली बार डिस्कस करेंगे। ओके, सो एनीबडी हु वांट्स टू शेयर? यस, आई हैव 3 minutes more. यस संजीव, गो अहेड। नमस्ते सभी को। टॉपिक बहुत अच्छा है और बहुत ही दिल के पास है ये, क्योंकि सच्चे सुख की बात करी है। और जो आपने लाइन बोली ना, दिस टू शैल पास, इसका मैंने, आपने पूछा कि आपने लाइफ में क्या एक्सपीरियंस करा है, क्या करा है, तो आई एम जस्ट वांट टू शेयर छोटा सा। मुझे ये जो लाइन आपने बोली, दिस शैल टू पास का, लाइफ में उस मोमेंट में एक बड़ी अच्छी चीज समझ में आई जब हम पेन और प्लेजर की बात करते हैं। लोग मनचाही चाहते हैं और अनचाही को दूर भगाना चाहते हैं। तो मुझे एक लाइन मिली, आज अमित जी की जगह मैं एक सिंगल लाइनर देता हूँ, ठीक है। प्लेजर इज द बिगेस्ट रीजन फॉर द पेन। जितना हम प्लेजर को सीख करते हैं, जितना हम सुख की खोज करते हैं, हमें याद रखना चाहिए जितना सुख चाहिए, दिस टू शैल पास, वो भी उत्पन्न होगा तो वो भी खत्म होगा। और जब प्लेजर खत्म होगा तो वो पेन में ही कन्वर्ट होगा, क्योंकि आप प्लेजर से इतना अटैच्ड हो गए हो कि वो पेनफुल होगा ही होगा। तो मैंने लाइफ का जो फंडामेंटल निकाला कि प्लेजर भी नहीं, पेन भी नहीं, एक्चुअल सुख। तो आप बोलोगे इसका क्या मतलब है, तो जस्ट सिंगल पॉइंट कि जब कुछ अचीव होता है, कुछ मिलता है, इट्स अच्छा लगता है, लेकिन उसको पकड़ के नहीं बैठते हैं। उसको एंजॉय करा, फील करा, एक्सपीरियंस करा, शेयर करा, पार्टी कर ली, जितना करना है कर लिया, लेकिन
उसके बाद उसे भी छोड़ दिए। परफेक्ट। अगर ये छोड़ दिया तो आपने प्लेजर को नहीं पकड़ा, तो जब वो जाएगा तो दुख है ही नहीं कुछ भी। एब्सोल्युटली। तो दैट्स व्हाट आई से। आपने सच्ची, आपने इतनी अच्छी जो लाइन को रिमाइंड कराया, दिस टू शैल पास, तो सुख ऑल्सो विल पास। एब्सोल्युटली परफेक्ट। बहुत थैंक यू बढ़िया। वेरी मच। Let's acknowledge Sanjeev. Wonderful. Great. Anybody else? Yes, Kapil ji, go ahead. Hanji Kapil ji, go ahead. हाँ. Shashi ji, two guests were invited to join. One was Priyanka, she's traveling. So she had आपकी to आवाज leave क्लियर नहीं to आ रही है, join. थोड़ा सा माइक में बोलिए। Am I audible now? हाँ हाँ, क्या बेटर। आप सुन पा रहे हैं? या better. Yeah. Two guests joined. One is Priyanka and another is Mr. Sanjay Punekar. संजय जी से मेरी अभी रिसेंटली मुलाकात है इंडिया हैबिटेट सेंटर. ही इज अ renowned painter artist. So he joined one group. So I talked about this group. So he has joined the group and attended the full session. अभी मेरे पास संजय जी भी कुछ शेयर करना चाहेंगे. And about today's topic, wonderful topic. And जैसे अभी संजीव जी ने भी समरी दिया, तो मैं अभी संस्कृत लर्निंग कर रहा हूँ. तो मेरी कोइंसिडेंस नहीं होते. उसमें अभी एक कहानी है संस्कृत में, वही राजा और मंत्री वाली, नृपा एंड उसका मंत्री. तो उसका टाइटल है ईश्वर यत् करोति शोभनम एव करोति. भगवान जो करता है शोभनम ही करता है. इसका अर्थ क्या है? तो सेम स्टोरी इज देयर, एग्जैक्टली द सेम स्टोरी है जो आपने नरेट करी. तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस वंडरफुल स्टोरी. अभी आपने कहा कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करें. तो फॉर जो एक्सट्रीम ब्लिस वाली सिचुएशन है ना, जो राम रस पिया रहे, जो आप भक्ति उसमें, जो मैं गुरु जी सत्संग में गा रहे हैं, मेरी गाड़ी में भी वो शब्द बाणी चल रहे हैं, उसमें एक शब्द आता है राम रस पिया रहे. तो वो ऐसी भूख है, ऐसी प्यास है, वो मतलब वो एक कंटिन्यूस चल रहा है उसके अंदर. मुझे वो नहीं भी चल रहा होता तो वो चल रहा है, मतलब दैट वे. अगर वो नहीं चल रहा तो आपके मन में वो जाप चल रहा है या जपा जाप, जो आई डोंट नो द टर्म्स बेसिकली. बट दैट दिस सिचुएशन इज देयर. दुनिया का प्लस माइनस तो चल ही रहा है. एक शब्द और आ जाता है, हम इसी बात को कर देते हैं. तो आता है कि ये सुख दे तुझे आराधिए, दुख भी तुझे दे आइए. मतलब दैट इज वंस यू आर इनटू दैट जोन. तो ये सुख दुख जो भी चल रहा है, तो बी ऑलवेज इन दी चरण ऑफ लॉर्ड. एंड देन दैट दिस टू शैल पास. एंड वो सारी चीजें होती हुई नजर आती. और कई बार जैसे इस स्टोरी में भी कहा कि हमें आगे का नहीं नजर आ रहा होता. तो बट जब वो हमारी जर्नी उस थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाती है, वी लुक बैक एंड कनेक्ट द डॉट, तो लगता है यार एवरीथिंग हैज सम मीनिंग समवेयर. Yes. Thank you for this entire session. So Perfect. I close with it. Absolutely fine. Let's acknowledge Kapil ji. Wonderful sharing. Yes. Yes, Shashi ji. Yes, Sirat ma'am. Yes, बताइए. बेटे, I know कि I'm a blissful soul and that is my birthright to it. But ना चाहते हुए भी mind comes up, और ना चाहते हुए भी गलत हम सोच लेते हैं, गलत बोल भी देते हैं और बाद में पछता भी लेते हैं. But all this is कि I have to be like a deaf mute और अंधा बहरा गूंगा जैसे हो जाओ. जो हो रहा है, be a spectator, I am the seer. आपने बताया नदी बह रही है, पानी जा रहा है, बस. पर वो उतना हो नहीं पाता अपने आप को. माइंड इज नॉट इन कंट्रोल, द सेंसेस आर नॉट इन कंट्रोल. तो वही माइंड को बोलते हैं अभी दे आर ट्राइंग टू चीट मी, दे आर टेकिंग मेरा फायदा. एंड गलत सोच लेते हैं हम. क्या हो जाएगा एंड में, व्हाट विल हैपन, कुछ नहीं होगा कल. पर हम होशियार हो जाते हैं उस situation के लिए, and we retaliate sometimes. Yes. That's not good. And for me it is to be बिल्कुल शांति होकर रहना है. Perfect. बहुत बढ़िया सीरत मैम. Let's acknowledge Sirat ji. She is our youngest participant with maximum experience. Huh? Okay. Great.
Welcome. Anybody else who wants to share? Yes, Sushil ji, you have raised your hand. Go ahead. हाँ जी, आज का डिस्कशन बहुत रिच रहा, बहुत एनरिचिंग रहा, एंड इफ आई वांट टू मेक ए टेक होम पॉइंट्स, तो एक तो ये हो गया कि सुख की चाहत ही दुख का कारण बनती है। यस। नंबर 2, आपने जो कहा कि दिस टू शेल पास। यस। तो आज इस बात की ज्यादा वैल्यू समझ आई, जो अपन सब जानते हैं, सबने पढ़ा है, मेरी समझे स्टीफन कवी की, कि चूज योर रेस्पॉन्स, स्टॉप रिएक्टिंग टू एनी सिचुएशन एंड चूज योर रेस्पॉन्स। तो आज उसकी और गहराई का मीनिंग समझ में आया कि दिस विल ओनली लीड अस टू व्हाट यू कॉल समता भाव। when we decide not to react to any situation and choose our response after giving a pause, if we choose our response, I think that will take us gradually to समता भाव। आज की आपकी टीचिंग से कुछ समझने की कोशिश की, वही। बहुत बढ़िया, ग्रेट, वंडरफुल। एक बहुत ही अच्छी चीज, बहुत ही अच्छी चीज मेरे गुरुजी ने एक बहुत अच्छी चीज मुझे दी थी कि भगवान से जब भी रोज रात में सोने के पहले प्रार्थना करो तो ये दुख मांगो, सुख मत मांगो। भगवान से बोलो कि भगवान मुझे आप दुख ही दीजिए, क्योंकि दुख में आप मेरे साथ रहते हैं। वेरी गुड, परफेक्ट। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इन महाभारत कुंती सेज टू कृष्णा, कि मुझे दुख दीजिए ताकि मैं आपको रोज हर पल याद करती रहूं, एंड यू आर विथ मी। वेरी गुड, so great understanding. So when you are wanting दुख, तो दुख आने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और सुख आ रहा है तो एंजॉय कर ही लो, पार्टी कर ही लो। राइट, वेरी गुड, ग्रेट। लेट्स एक्नॉलेज रेणु जी एंड सुशील जी। यस विजय जी, गो अहेड। मैं तो यही सोच रहा था, ऑन द कॉन्ट्ररी, ये दुख क्यों मांगो? ये दुख मांगना, सुख मांगना, ये तो माइंड गेम्स हैं। दुख मांगोगे दुख मिलेगा, दुख मांगोगे दुख मिलेगा, सुख मांगोगे सुख मिलेगा। आई लाइक दैट कॉन्सेप्ट, जहाँ आप बोलो कि सुख में भी भगवान को उतना ही याद रखो जितना दुख में याद रखो। परफेक्ट, वो भी बोलते हैं ना वो। हाँ, दुख क्यों मांगो? बोलते हैं ना, दुख में सुमिरन करें, सुख में करे ना कोई, तो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। बिल्कुल मेरा ख्याल ये माइंड गेम्स हैं, थोड़ा माइंड गेम्स नहीं है, इट इज अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, हाउ यू वांट टू रिलेट टू योर लाइफ। सो एवरीबॉडी ऐसा ही सेड, इट इज अ पर्सनल चॉइस, नो। सुख और दुख तो पर्सनल है, तो कैसे लोग देख रहे हैं उसको डिपेंड्स ऑन देयर। शशिधर जी, एक मैं आप जो बात बोलते हैं, जो मैं सुनता आया हूँ कि जो मांगोगे वो मिलेगा। बिल्कुल है। तो इसलिए वो पावर जो है, जो मांगो वो मिलेगा, आप वो ना मांगो जो आपको नहीं चाहिए ना। बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कॉन्ट्ररी नहीं है। डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है देखने का। अल्टीमेटली वी आर ऑल आस्किंग फॉर इक्वानिमिटी ओनली। लोग समता में आने के लिए ही मांग रहे हैं, है ना। लोग दुख सुख मांग रहे हैं और दुख मिलता है तो दुखी हो जाते हैं, तो समता से हट जाते हैं। अगर दुख मांगोगे तो सुख और दुख दोनों आए, आप समता में रहोगे, क्योंकि मैं नहीं मांगा है इसलिए आया है ना। सुख आया तो ठीक है, वैसे एंजॉय कर लो, बिना मांगे ही कृपा हो गई, जैसे भी मान सकते हो। अल्टीमेटली वी आर टॉकिंग ऑफ इक्वानिमिटी ओनली, we are talking of samta, we are talking of bliss. Perfect, great. Let's acknowledge Vijay ji. Yes, anybody else? Now it is 12 minutes over time. I will need to close the session now. Last and final call. Anybody who wants to share? Those who have come for the first time, कुछ कहना चाहेंगे? What was your experience? If you want to leave your mobile number in the chat box, we will send you the recording of this program, and we will also add you in our group. So anything that you want to share or ask, you can write in the chat box right now. Yes, okay, so with this we come to the end of the session. Thank you very much, and as I said before, next week we will come with another point of Gyan Shakti in Vigyanmaya Kosh. Okay, right, till then, Brahmasmi, enjoy, take care, good night. Thank you, sabhi ko आत्मीय नमन। धन्यवाद, thank you very much, thank you.